સુરત શહેરની કાપોદ્રા પોલીસે ક્રાઇમ પેટ્રોલના સ્ટોરીની જેમ એક ચકચારી કેસને ઉકેલી કાઢ્યો। કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલ અનબ જેન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હરિનંદન સોસાયટી મિલેનિયમ કોમ્પ્લેક્સના ચોથા માળે હીરાના કારીગરોને પાણી પીવા માટે મૂકવામાં આવેલ કુલરમાં સેલ્ફોસ પાવડર ફાટેલી કોથળી પડેલ હતી, જે પાણી પીધા બાદ તબિયત બગડેલ હોવાનું જણાવતા આશરે 117 જેટલા કારીગરોએ કુલરમાંથી પાણી પીધેલ હતા અને જેને કારણે તબિયત બગડતા કારીગરોને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવેલ હતા। આ સમગ્ર ચકચારી કેસમાં પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ, હ્યુમન સોર્સિસ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સને આધારે તપાસણી કરી અને આરોપીને પકડી પાડ્યો। આ સમગ્ર મામલે મેનેજર નિકુંજ દેવ મુરારી જ આરોપી નીકળ્યો। નિકુંજને ઓનલાઈન અનાજ ટ્રેડિંગના ધંધામાં લાખોનું દેવું થઈ ગયું હતું, જેથી નિકુંજને 10 લાખનું દેવું થઈ જતા લોકો ઉઘરાણી કરવા આવતા હતા, જેથી તે ટેન્શનમાં આવી ગયો। 9મીએ સવારે તે કારખાનામાં પાણીના કુલર પાસે ગયો, જ્યાં પાણીમાં નાખીને ઝેર ખાવાની તૈયારી કરતો હતો, ત્યારે જ અન્ય કારીગરો પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા। નિકુંજે ઉતાવળમાં સેલ્ફોસ પાવડરની પડીકી કુલરમાં નાખી દીધી હતી। તેની ખબર હતી કે ઝેરવાળું પાણી છે, છતાં તે આ પાણી પી ગયો। તેથી સાથે અન્ય 6 કારીગરોએ પણ બોટલોમાં પાણી ભરી દીધું હતું। આ ઝેરી પાણી પીવાથી કારીગરોના જીવનું જોખમ થઈ શકે છે, તેવા ડરને કારણે નિકુંજે પાણીમાં ગંધ આવતી હોવાથી વાત કારખાનાના સુપરવાઇઝરને કરી, જેથી સુપરવાઇઝરે ત્યાં આવીને પાણીનું કુલર ચેક કરતા તેમાંથી સેલ્ફોસનું એક પેકેટ મળી આવ્યું હતું। દુબઈ અને અમેરિકામાં કરિયાણાનો સામાન એક્સપોર્ટનો કામ તે કરતો હતો। નિકુંજ દેવ મુરારી કારખાનામાં મેનેજર હોવા ઉપરાંત કરિયાણાના સામાનનું ઓનલાઈન ટ્રેડિંગનું કામ કરતો હતો। ઓનલાઈન માટે તેને 10 લાખ રૂપિયા મિત્ર પાસે લીધા હતા। લોન ચૂકવી ન શકતા તેને આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર કર્યો। પાણીના કુલરમાં ઝેરી દવા નાખી રત્ન કલાકારોની સામૂહિક હત્યાની કોશિશના ગુનામાં મેનેજર તરીકે નોકરી કરતા નિકુંજ હિતેશ દેવ મુરારી, રહેવાસી નાના વરાછા, મૂળ વતન ભાવનગરવાળાને કાપોદ્રા પોલીસે શુક્રવારે મોડી રાત્રે ધરપકડ કરી। આરોપી નિકુંજ દેવ મુરારી અપરિચિત છે। વધુમાં મેનેજર નિકુંજ દેવ મુરારી છેલ્લા 12 વર્ષથી કારખાનામાં હીરાનો હિસાબ રાખતો હતો અને 21,000નો પગારદારનો કર્મચારી છે। ઝેરી દવાને કારણે કારખાનાના 118 રત્ન કલાકારોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા હતા। આરોપી નિકુંજ મુખ્ય મેનેજરનો ભાણેજ થાય છે, જેથી કારખાનામાં તેને મેનેજર તરીકે નોકરી પર રાખવામાં આવ્યો હતો। હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસે કડક કાર્યવાही કરી। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंडिया टीवी, सूरत। कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में अनब जेम्स में जो रत्न कलाकारों को पॉइजनिंग करने का जो केस हुआ था, उसमें हमने 307 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो रजिस्टर किया था, उसमें हमने मुख्य आरोपी जो मेन अक्यूज्ड है उसको हमने पकड़ लिया है। उसका नाम निकुंज हितेश भाई देव मुरारी है और घटना की वारदात ऐसी है कि इसने अपने फ्रेंड से 10 लाख रुपए का उधार लिया था और ये ऑनलाइन बिजनेसेस जैसे ईबे या इट्सी जैसे बिजनेसेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सेलिंग का काम करता था और इसके अपने फ्रेंड से काफ़ी लोन हो गया था। इसके फ्रेंड को कहीं विदेश जाना था, तो इसका फ्रेंड जो है इसके ऊपर प्रेशर बना रहा था बार बार पैसा लौटाने का, और इसकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी लेविश थी। 1-2 खर्च इसके ज़्यादा थे, जितनी इसकी आवक थी इसकी सैलरी सिर्फ 21,000 रुपये थी। तो इसके उपलक्ष्य में इसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया और इसने ये पैकेट जो सेल्फोस का पैकेट है, ये 31 मार्च को कापोद्रा ही पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक जो रिटेल शॉप है वहाँ से इसने खरीदा। और जब ये सेल्फोस का पैकेट फाड़ के अपना जान लेने के लिए पानी की टंकी के पास गया, तो इसकी हिम्मत नहीं हुई और ये डर गया। और वहाँ पे लोगों की आवक काफ़ी थी, तो इसने डर के मारे वो छुपाने के लिए उस पैकेट को पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद जब इसको रियलाइज़ हुआ 2-3-4 मिनट के बाद कि इससे बहुत लोग मर जाएंगे, तो इसने खुद ही हंगामा स्टार्ट कर दिया कि पानी में जहर मिला है और यहाँ पे सेल्फोस का पाउडर मिला है। तो इसके बेसिस पे हमने जो इसका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और इसकी धरपकड़ की है। इस केस को अंजाम मतलब आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत मेहनत की है। हमने 2 इंस्पेक्टर्स से लेते हुए करीबन 4 टीम बनाई और अलग अलग टीम्स से बेसिस पे हमने सीसीटीवी और भी तरीकों को इस्तेमाल किया इस केस को डिटेक्ट करने में। फर्स्ट तरीका जो हमने इस्तेमाल किया बैच नंबर जो पैकेट पे हमें मिला था, उस पैकेट के बैच नंबर को हम बैक ट्रैक करके जब हम सूरत आए तो हमें ये पता चला कि ये पैकेट जो है, ये सेल्फोस का पैकेट 21 मार्च को सूरत में आया है। इस बैच के नंबर जो पूरा जो पैकेट है, फिर वहाँ से डीलर से सब डीलर, सब डीलर से रिटेलर और रिटेलर से अलग अलग शॉप्स पे हमने जब बैक ट्रैक किया तो हम शॉप को आइडेंटिफाई कर पाए कि वो शॉप पे कब आया वो पैकेट। फिर वहाँ से भी हमने जब सीसीटीवी देखना स्टार्ट किया तो हमें ये पता चला कि ये आदमी 31 मार्च को ये पैकेट लेने आया है यहाँ पे। तो हमें वहाँ से भी ये लगभग क्लियर हो गया था कि यही इन्वॉल्व है।
उसके बाद इससे हमने सीसीटीवी देखा तो ये 31 मार्च को रात को 9 साढ़े 9 बजे उस शॉप पे ये पैकेट लेने आता है और गूगल पे से ट्रांजैक्शन करता है, तो उसका भी हमारे पास प्रूफ है कि इसने ट्रांजैक्शन किया है। उसके बाद दूसरी बात कि पहले तो हमें ये लग रहा था कि 1 घंटे का जो टाइम विंडो है, 1 घंटे का टाइम विंडो में किसी ने डाला और 1 घंटे में ये डिसॉल्व हुआ और ऐसा हुआ। लेकिन इसको हमने तपास करने के लिए हमने खुद ही ट्राई किया कि ये सेल्फॉस का पैकेट अगर पानी में अगर हम डालें, तो कितनी देर में स्मेल आएगा और कितनी देर में ऐसा जो स्मेल जिसका बहुत खराब सा स्मेल होता है, वो कितनी देर में आता है। तो लोकल जो डी स्टाफ है उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने खुद ही पानी में पैकेट डाल के देखा, तो उसे पता चला कि मुश्किल से 3 या 4-5 मिनट में ये स्मेल बहुत बुरा स्मेल आना शुरू हो जाता है और चारों तरफ ये बात पता चल जाएगी कि इसमें कुछ डाला हुआ है इस पानी में। तो इससे जो हमारा 1 घंटे का जो टाइम विंडो था उसको हमने शॉर्टन अप किया, उसको हमने 10 मिनट का टाइम विंडो किया कि डालते के साथ 10 मिनट के अंदर उसके आगे पीछे के 10 मिनट के विंडो में ही किसी ने डाला होगा तभी, नहीं तो ये तो सबको पता चल जाएगी। और वर्कर्स का जब स्टेटमेंट हमने लिया तो वो जब सुबह 8 बजे पानी पीने गए थे, तो उनको पानी में कोई स्मेल या फिर कोई टेस्ट में खराब नहीं नज़र आ रहा था। तो 10 मिनट के टाइम विंडो में हमने जो उसके सीसीटीवी थे फैक्ट्री के अंदर, उसमें हमने ये चेक किया कि 10 मिनट में कितने लोग जो हैं वो पानी पीने जा रहे हैं और कौन-कौन वापस आ रहा है। तो उसमें हमने नैरो डाउन किया, टोटल 3 या 4 लोगों को हमने नैरो डाउन किया, उससे चारों से इंटरोगेशन की। चारों का मोबाइल हिस्ट्री भी चेक किया है हमने और जो मोबाइल हिस्ट्री चेक करते समय ये जो आरोपी है निकुंज, इसके मोबाइल हिस्ट्री में गूगल सर्च हिस्ट्री में भी हमें ये मिला कि मेडिकल मतलब सेल्फॉस पाउडर का सर्च हिस्ट्री भी मिला और इसका क्या-क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो हमें थोड़ा-सा डाउट हुआ। फिर स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेशन किया हमने, इंट्रोगेशन पीआई एमबी ओसुरा और जो डी स्टाफ है उसने पूरा स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेशन करके जब हमने इससे पूछपरछ की तो हमें ये पता चला, इसने कबूला कि सर मैं बहुत दिन से जान देने की कोशिश कर रहा था, अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ये हरकत की है। और इसमें किसी का षड्यंत्र नहीं है, किसी किसी को बदनाम करने की वो बात नहीं है, मैं अपना जान खुद लेना चाहता था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मैं डर गया और डर के कारण मैंने इसमें उसमें डाल दिया और उसके बाद क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बाकी लोग मर जाएँगे, इसलिए मैंने ये हंगामा स्टार्ट किया। तो इसके बिहाफ़ में मैं पूरा कापोद्रा पुलिस टीम को और पूरे सूरत सिटी पुलिस को मैं कांग्रेचुलेशंस बोलता हूँ, क्योंकि ये केस ऐसा था जो कि हमारे को भी टेस्ट कर रहा था और बहुत ही कापोद्रा की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ही टूक समय में रिज़ल्ट तक हम आए। सर, ऐसा मामला कभी पहले सामने आया है कि किसी ने ऐसा करके लोगों की जान लेने की कोशिश की हो या अभी हम इस बात को रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि किसी ने इसने जान लेने की कोशिश की है या नहीं की है। इसका जो ट्रांज़ैक्शन स्टेटमेंट है और इसकी जो मूवमेंट हिस्ट्री है, वो सब भी हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे, किन लोगों के साथ ये उठता-बैठता है, क्या करता है, किस तरीके का इसका है, इसका कोई माइंडसेट है कि नहीं, ये कि ये सिर्फ़ एक स्टोरी बना रहा है अपने आप को बचाने के लिए। हम किसी चीज़ को अभी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके ही हम कन्क्लूज़न तक पहुँचेंगे, लेकिन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चल रहा है कि इसने अपनी जान लेने के लिए ये हरकत की है और इसमें ये दूसरों को मारना नहीं चाहता। सर ये जान लेने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इसको ऐसा क्यों